ناظرین السلام علیکم، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ سول سروس امیدواروں کی حوصلہ افزائی کے لیے رقمی امداد، میل میں کوالیفائی کرنے والوں کو 1 لاکھ روپے کے چیکس کی جرائی، نائب وزیر اعلیٰ کا خطاب۔ سلم بستیوں میں بروقت صفائی کو یقینی بنائے، موسمی بیماریوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں، لاپرواہی پر سخت کارروائی ہوگی۔ میئر کا مختلف سلم علاقوں کا دورہ۔ میرچھیل کیسرا اوٹر رنگ روڈ پر خوفناک سڑک حادثہ، نامعلوم گاڑی نے سڑک پر پودے لگانے والے 3 مزدوروں کو رون ڈالا۔ زو روڈ پر RTC بس کی ٹکر سے ایک شخص جاں بحق۔ اور بارش کی وجہ سے حسینی عالم میں 114 سالہ مکان کا جزوی حصہ منہدم، کوئی جانی نقصان نہیں، پورے مکان کو منہدم کر دیا گیا۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹوری چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے، خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس، پرائم لوکیشن پر، ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، QMax سفائر، ساجد ریزیڈینسی، QMax مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، MK ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں، چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ، QMax فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام۔ صرف ایک نہیں، 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز۔ شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، QMax فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز۔ ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ QMax فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس، اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈینسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈینسی فیز 2، بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنس پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈینسی فیز 2، where life comes alive۔ سرخیاں آپ نے دیکھی ہے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔
हुकूमत तेलंगाना सिविल सर्विस इम्तिहानात में रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों की हौसला अफजाई के लिए उन्हें 1-1 लाख रुपए अदा कर रही है। राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम स्कीम के जरिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेन क्वालिफाई हुए रियासत के 178 उम्मीदवारों को नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने 1-1 लाख रुपए के चेक हवाले किए। इस सिलसिले में प्रजा भवन बेगमपेट में मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था, इंटरव्यू के लिए जो उम्मीदवार मुंतखब होंगे उन्हें मजीद 1-1 लाख रुपए और दिल्ली में क़याम की मुफ्त सहूलत फराहम की जाएगी। अवामी हुकूमत ने अवामी बहबूद के कामों में सिविल ऑफिसर्स के रोल को अहम तरीन करार देते हुए उनका कहना था कि हुकूमत की पॉलिसियाँ और प्रोग्राम चाहे कितने भी अच्छे हों, उसकी असल अमरावरी दफ्तरियत के किरदार पर मुनहसर होती है। इसलिए सिविल सर्विस में ऐसे उम्मीदवारों की हौसला अफजाई की जानी चाहिए जो हुकूमत के कामों को बेहतर तरीके से आवाम तक पहुंचा सकते हों। नायब वज़ीर आला ने इस सिलसिले में चंद नामी ग्रामी सिविल ओहदेदारों के नाम लिए जिनकी कारकर्दगी के सबब आज भी उन्हें याद किया जाता है। नायब वज़ीर आला ने बताया कि यह स्कीम गुज़िश्ता साल से चलाई जा रही है। गुज़िश्ता साल 148 उम्मीदवारों को ये इमदाद दी गई थी, जिनमें 10 इंटरव्यू में कामयाब रहे। भट्टी विक्रमार्का ने सिंगारेनी की जानिब से इस तकरीब के एहतमाम पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि सिंगारेनी के 45,000 से ज़्यादा मुलाजमीन और बिलवास्ता रोजगार हासिल करने वाले लाखों अफराद इस कंपनी को हयात बख्श रहे हैं। मेयर अजीमतर बल्दिया हैदराबाद जी विजय लक्ष्मी ने मुख्तलिफ स्लम बस्तियों का दौरा करते हुए हिदायत दी है कि इन बस्तियों में सफाई पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। मेयर ने पीर की सुबह जोनल कमिश्नर अनुराग जयंती के साथ जुबली हिल्स सर्कल में अंबेडकर नगर और उदय नगर स्लम बस्तियों का दौरा किया। मेयर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि बारिश के मौसम में मौसमी बीमारियों से बचने के लिए सफाई के प्रोग्राम तेज किए जाएं। विजय लक्ष्मी ने खबरदार किया कि कचरे की निकासी में गफलत और लापरवाही बरतने वाले सफाई अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनका यह भी कहना था कि स्लम बस्तियों को तामीराती फुजला फेंकने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बंजारा हिल्स रोड नंबर 1 पर वाक़े हॉस्पिटल के पास सड़क पर नाले का स्लाब मुनदम होने का भी नोट लिया गया। जंगी खतूत पर उसे मुकम्मल करने की हिदायत दी गई। मेयर के दौरे के मौके पर चीफ इंजीनियर रत्नाकर, डिप्टी कमिश्नर सुनाया और दूसरे भी मौजूद थे। गवर्नमेंट विप आदि श्रीनिवास ने बीजेपी के नए रियासती सदर रामचंद्र राव को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मीडिया से बात करते हुए आदि श्रीनिवास ने कहा, पार्टी सदर का ओहदा मिलने पर रामचंद्र राव बहुत उछल रहे हैं, जैसे कि बंदर को नारियल का छिलका मिल गया हो। उन्होंने कहा कि रामचंद्र राव कितनी भी उछल कूद कर लें, तेलंगाना के लोग बीजेपी पर भरोसा नहीं करेंगे। मरकज में 400 पार का न लगाने बीजेपी 240 नशिस्तों तक महदूद होकर रह गई। तेलंगाना में बीजेपी की कोई भी परवाह नहीं करेगा। बीजेपी जाली वोटों पर पहले राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने से खासिर है। राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन को बेनकाब कर रहे हैं। अगर हम हैं तो बीजेपी और इलेक्शन कमीशन इसका जवाब दें। आदि श्रीनिवास ने सवाल किया कि जब इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए जाते हैं तो बीजेपी क्यों परेशान होती है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पीर को लोकसभा में गज्जा नस्लकशी व फाकाकशी का मसला उठाया। सदर मजलिस ने अपने एक्स अकाउंट पर बताया कि उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मकतूब भी रवाना करते हुए मुतालबा किया कि गज्जा में फाकाकशी को रोकने के लिए इक़दाम किए जाएं। बैरिस्टर ओवैसी ने अपने मकतूब में वजीर आजम पर इस बात के लिए भी जोर दिया कि इसराइल को फ़लस्तीनियों की नस्लकशी से रोका जाए। बीआरएस पार्टी के लीडर और साबिक नायब वज़ीर आला टी राजा ने इतवार को रियासती वज़रा भट्टी विक्रमार्का और उत्तम कुमार रेड्डी के सतिका समक्का बैरज के दौरे को बेफैज करार दिया। मीडिया से बात करते हुए राजा ने कहा, वज़रा ने पहाड़ खोदा लेकिन चूहा तक नहीं निकला। उन्होंने कहा कि सीआर के दौरे हुकूमत में 90% काम मुकम्मल हुआ था। कांग्रेस हुकूमत को 20 माह गुजर चुके हैं लेकिन 10% भी काम मुकम्मल नहीं हुआ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सोलार पावर प्लांट बनाने का ऐलान किया था लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हुई। राजा ने कहा, कांग्रेस लीडर्स के सीआर दौरे हुकूमत में तामीरी प्रोजेक्ट को नाकामी के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यौम आज़ादी तकारीब के सिलसिले में बीजेपी की तरफ से रियासत भर में हर घर तिरंगा मुहिम चलाई जाएगी।
इस सिलसिले में सदर रियासती बीजेपी रामचंद्र राव की क़ियादत में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को क़तियत दी गई। इस मुहिम के दौरान हुब्बुल वतनी के प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाएंगे। रामचंद्र राव ने बताया कि कई तंजीमें इस मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। 14 अगस्त को तिरंगा रैली निकाली जाएगी। 14 लाख मकानात पर तिरंगा लहराया जाएगा। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का असम्बली मलकपेट में रुकन असम्बली अहमद बलाला ने बरकी की सरबराही, नई बरकी लाइन, ज़ेर ज़मीन केबल और दीगर बरकी तनसीबात पर जायजा इजलास मुनक्किद किया। कैंप ऑफिसर मुनक्किदा इस इजलास में तेलंगाना सदरन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के DEAD ADOs, एयर कंट्रैक्टर्स और हल्के के कॉरपोरेटर्स ने शिरकत की। इस जाम इजलास में रास्तों के दरमियान आने वाले खंभों को हटाने, जंगालूद खंभों की जगह नए खंभों की तनसीब, नए ट्रांसफार्मर्स, असरी बरखियाना, ज़ेर ज़मीन केबल की तनसीब, तमाम मंजूरा कामों की तकमील, नए कामों की निशानदही, हल्के के बरकी मसाइल पर फैसले किए गए। रुकन असम्बली ने अहदेदारों को मंजूरा कामों को वक्त मुकर्ररा पर मुकम्मल करने की हिदायत दी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने बलरी डिवीजन फलकनुमा का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने फातिमा नगर, मौलाना आज़ाद स्कूल के अलावा उसके अतराफ अकनाफ के इलाके जात का अहाता किया। उन्होंने मुताल्लिक़ा महकमे के अहदेदारों को मज़कूरा कामों को जल्द शुरू करने पर जोर दिया। इसके अलावा मोहम्मदिया मस्जिद के करीब CCRD के कामों को भी शुरू किया गया, जिसकी लागत 80 लाख रुपए बताई जाती है। इसके अलावा होली फातिमा स्कूल वट्टेपल्ली के पास 40 लाख रुपए की लागत से किए जाने वाले VDCC रोड और ड्रेन के काम मुकम्मल हो चुके हैं। बास कामों के लिए टेंडर तलब किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुकम्मल शुदा कामों का सदर मजलिस के हाथों इफ्तिताह अमल में आएगा। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सुदूर और मोतमदीन मौजूद थे। बारिश के दौरान मलकपेट रोड अंडरब्रिज के पास ट्रैफिक के मौसर बहाव के लिए इक़दाम किए गए हैं। 130 ट्रैफिक DCP R वेंकटेश्वर ने बताया कि बारिश के दौरान मलकपेट रेलवे ब्रिज अंडरब्रिज में पानी के जमा होने के पेश नज़र पुल के करीब नया U-टर्न बनाया गया है। ताहम उन्होंने वजाहत की कि अंडरब्रिज में पानी जमा होने की सूरत में ही इसे खोला जाएगा। मलकपेटा RUB के पास वाटर लॉगिंग हो रहा, वो बारिश समय में वो पूरा वाटर इधर रुकने के बाद वो गाड़ी नहीं चला रहा, इसलिए घंटों का घंटा वो ट्रैफिक जमा हो रहा। ट्रैफिक डाइवर्शन करने के लिए इधर ये मेट्रो रेल डिवाइडिंग लाइन ओपनिंग कर रहा हूँ। हमेशा खुला नहीं रहते, ओनली कभी भी क्लोज करते, वो ओनली बारिश के टाइम में, वाटर लॉगिंग के टाइम में इधर ओपन करके डाइवर्शन करते। मुसलसल बारिश की वजह से हुसैनी आलम छोटे सराय के पास 2 दिन पहले पोशीदा मकान की दीवार मुनहदम हो गई थी। पीर की सुबह मकान का जुज़वी हिस्सा मुनहदम हो गया। इत्तला मिलते रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने GHMC, टाउन प्लानिंग और हैड्रा के अहदेदारों के हमरा मुकाम वाक़े का दौरा किया। मकान को मुकम्मल मुनहदम कर दिया गया है। मुकाम वाम की तरफ से भी इस सिलसिले में बलदिया से पहले भी शिकायत की गई थी और मुताल्लिक़ा MLA के इल्म में ये बात लाई गई थी। ये इमारत 114 साल कदीम बताई गई है। इमारत के मुनहदम होने का मंजर CCTV में भी कैद हुआ है। हैड्रा ने एक बयान जारी करते हुए वजाहत की है कि प्रजावानी प्रोग्राम को बिला खलल जारी रखा जाएगा। कहीं भी हैड्रा की खिदमात में खलल या रुकावट नहीं हुई है। मुलाजिम की तनख्वाहों में कमी के जियो से मुताल्लिक़ कमिश्नर हैड्रा के दफ्तर का कहना था, यह हकीकत है। ताहम कमिश्नर ने तयक़ुन दिया है कि हैड्रा के मुलाजिमीन की तनख्वाहों में कोई कटौती नहीं की जाएगी। हैड्रा के मुताबिक कंट्रोल रूम के मार्शल्स भी अपनी खिदमात को अंजाम दे रहे हैं। गैर कानूनी बेटिंग ऐप की तशहीर के सिलसिले में तेलुगु फिल्म अदाकार राणा डगोबटी से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तकरीबन 4 घंटों तक पूछताछ की है। पीर की सुबह राणा डगोबटी ED के दफ्तर बशीरबाग पहुंचे और 4 घंटों की पूछताछ के बाद रवाना हुए। मीडिया के नुमाइंदों ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। गैर कानूनी बेटिंग ऐप की तशहीर के सिलसिले में अब तक फिल्म स्टार प्रकाश राज और विजय देवरकुंडा से भी ED की पूछताछ हो चुकी है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का याकुतपुर में मुसलसल तरक्याती काम जारी हैं।
पीर को रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी के हमरा दबीरपुरा डिवीजन में सीवरेज के काम का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने काम की तकमील से मुताल्लिक ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी और सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के प्याम से वाकिफ कराया। हाल याकूतपुरे में अवामी शिकायत की बर वक्त यकसुई को यकीनी बनाया जा रहा है। पीर को हुए दौरे में मुतल्लिका कॉरपोरेटर अलमदार वालाजाही के अलावा पार्टी के मुकामी कारकुन भी मौजूद थे। दारुसलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने सीएम रिलीफ फंड के ज़ायद 100 चेक्स तकसीम किए, जिसकी मालियत 52,500,000 रुपये बताई गई है। उन्होंने मीडिया को बताया कि मजलिस अवाम के दरमियान रहते हुए तमाम सरकारी स्कीमों फंड से अवाम को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करती रही है। इस मौके पर सुलेमान नगर डिवीजन के कॉरपोरेटर नवाजुद्दीन अहमद के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन की निगरानी में हल्के असम्बली नामपल्ली में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में नुमाइंदा रुकन बल्दिया जफर खान ने DRF टीम के ओहदेदार AE महेश के हमरा बारिश से मुतासर इलाकों का दौरा किया। बलदिया की टीमों ने मलबा उठाने के अलावा कचरे की साफ सफाई और दूसरे काम अंजाम देने के अलावा हबीबनगर के नाले की सफाई के काम भी करवाए। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने नबील कॉलोनी का तफसीली दौरा करते हुए VDCC रोड के कामों का मायना किया और कामों को जल्द पूरा करने की हिदायत दी। सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर 3 करोड़ रुपए लागती तरक्याती काम महेश्वरम हल्का असम्बली के जलपल्ली डिवीजन के लिए मंजूर किए गए हैं। इनमें NP2 पाइपलाइन, पीने के पानी की पाइपलाइन और CC रोड के काम शामिल हैं। इन कामों को शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा बारिश का पानी मस्कुरा इलाकों में जमा हो रहा था। दौरे में इस मसले की भी यकसुई की गई, जिसके लिए नए बॉक्स ट्रेन तामीर किए जाएंगे। रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग कादरी ने हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के सुलेमान नगर डिवीजन के मुख्तलिफ इलाके जात किशोरी बेगम मस्जिद, MM पहाड़ी, कोहे महमूद, सुलेमान नगर बी के अलावा उसके आसपास के इलाकों का दौरा किया। दौरे में उनके हमरा बलदी, बरकी और आबरसानी के ओहदेदार मौजूद थे। उन्होंने तरक्याती कामों का मायना किया और कामों में तेजी पैदा करने की हिदायत दी ताकि मकीनों को राहत हो। इस मौके पर मज़कूरा महकमे जात के ओहदेदारों के अलावा मजलिस के मुकामी इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन और कारकुन मौजूद थे। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन की निगरानी में नुमाइंदा रुकन बल्दिया डॉक्टर कासिम ने जनरल मैनेजर महकमे आबरसानी J श्रीनु नायक के हमरा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने हिमायतनगर के नवा इलाकों में पीने के पानी के कंप्रेशर के बारे में बातचीत की, जिसकी वजह मेन पाइपलाइन में से पानी का खारिज होना बताई गई। इस मौके पर ख्वाजा गुलशन और मेहदीपट्टनम के इलाके जात में मज़कूरा मसला दरपेश होने पर नुमाइंदगी की गई। इस सिलसिले में एक नई पाइपलाइन बिछाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। मेरचल जिले की केसरा आउटर रिंग रोड पर हुए खौफनाक सड़क हादसे में सड़क पर पौधे लगाने वाले 3 मजदूर हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक तेज रफ्तार नामालूम गाड़ी ने उड़ीसा के साकिन मजदूरों को टक्कर दे दी। तीनों मजदूरों की बरसरे मौका मौत हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़या पहुंची। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस हादसे की वजह से मसरूफ शाहरा पर ट्रैफिक में भी खलल देखा गया। मुतालिका पुलिस ने केस दर्ज किया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। जू पार्क के पास RTC बस की टक्कर से एक शख्स हलाक और उनका साथी जख्मी हो गए। महलूक की शिनाख्त सैयद आसिफ की हैसियत से की गई, जबकि हादसे में जख्मी हुए उनके साथी सैयद जावेद की हालत नाजुक बताई गई है। इत्तला मिलते ही बहादुरपुरा पुलिस मकाम वाक़या पहुंच गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। इस जोन की सुल्तान बाजार पुलिस ने शटर उठाकर सरखा करने वाली 6 रुकनी टोली को बेनकाब करते हुए उनके कब्जे से सरखा की हुई रकम से 8 लाख रुपए बरामद किया और उन्हें गिरफ्तार किया। DCP इस जोन डॉक्टर B बालास्वामी की रास निगरानी में कार्रवाई की गई। 4 अगस्त को सुल्तान बाजार पुलिस को गुजराती गली कोठी की लक्ष्मी मोबाइल शॉप के मालिक रामदेव ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 3 और 4 अगस्त की दरमियानी शब उनकी दुकान का शटर आहानी जाली को उठाकर सारे दुकान में दाखिल हुए और ड्रा में रखे 9 लाख रुपए का सरखा किया। पुलिस ने CCTV और दीगर असली टेक्नोलॉजी की मदद से राजस्थान से ताल्लुक़ रखने वाली 6 रुकनी टोली को दिलसुखनगर के क्लॉज से गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 8 लाख रुपए और 6 मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए। मुलजिमीन को यहाँ पर बताया गया जयाराम, नागजी राम,
लैलाराम, जबराराम, परशुराम, लक्ष्मण राम और दूसरे लोग बताए गए हैं। इनमें कई मुख्तलिफ रियासतों में जराइम भी अंजाम दे चुके हैं। मुलजिम नंबर 6 परशुराम, जो दिलसुखनगर में रहते हुए एक मीत सेवा में भी काम कर रहा था, उसी कीमा पर दीगर 5 मुलजिमीन 3 अगस्त को राजस्थान से बज़र ट्रेन हैदराबाद पहुंचे थे और उन्होंने मुलजिम नंबर 6 की निशानदेही पर उसकी दुकान का जायजा लिया और उसी शब ये वारदात अंजाम दी। डीसीपी की निगरानी में एडिशनल डीसीपी जे नरसैया, एसीपी मोतैया, इंस्पेक्टर नरसिम्हा और उनकी टीम ने इस टोली को बेनकाब किया। राजस्थान के చెందినటువంటి 6 लोग शटल लिफ्टिंग केस में अरेस्ट हुआ। इस बारे में बोले तो कल लास्ट मंडे one case was reported in the Sultan Bazar PS stating that some unknown offenders lifted their shutter and theft of 9 lakhs rupees from his shop. Based on the information, we registered a case crime number 174 of 2005 under HB, house break and theft. Based on this report, we investigated the case and apprehended 6 persons who are belongs to the Rajasthan state and recovered 8 lakhs rupees and 6 cell phones. Okay, इसमें 6 लोग से अलग अलग पुलिस स्टेशन में 4 केसेस एंड A3 में 18 केसेस रिपोर्ट हुआ। We are arrested today all these 6 persons and remanding today to the court. Previously, if you refer, one case reported in Naupada police station of Thane district in Maharashtra, where these people were done a shuttle lifting and theft of 5.7 crores worth jewelry from the jewelry shop, where this Pune police arrested them and remanded, but they came on the bail and did again this offence in the Hyderabad. काला पत्थर पुलिस स्टेशन हदूद के ताड़पंच चौराहे के पास 28 साल नौजवान पर कातलाना हमला किया गया। मुतासरा नौजवान खिनात यासीन की हैसियत से की गई। इत्तला मिलते ही काला पत्थर पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची। जख्मी नौजवान को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस सिलसिले में केस दर्ज किया गया है। मजीद तहक़ीक़ात जारी हैं। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए 7,70,000 रुपये मालियाती तेल जेवरात बरामद किए हैं। रेलवे पुलिस के मुताबिक पीर के दिन एक मुसद्दक़ कातिला पर कार्रवाई करते हुए यहां पर राजू को गिरफ्तार किया गया, जो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा का साकिन बताया गया है। रेलवे पुलिस के मुताबिक वो 2 साल पहले हैदराबाद मुंतकिल हुआ था और एक लैब में काम कर रहा था। वो शराब, सट्टे और जुए की लत में मुब्तला था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम 2 केसों में मुलविस है। रेलवे पुलिस ने मुलजिम को रेलवे स्टेशन के पास मुश्तबा हालत में घूमता देखकर उससे पूछताछ की तो वो एक चोर निकला। पुलिस ने मसरूक़ात तिला जेवरात को बरामद किया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोरी चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद।
क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। सिविल सर्विस उम्मीदवारों की हौसला अफजाई के लिए रकमी इमदाद। मेल में क्वालिफाई करने वालों को 1-1 लाख रुपए के चेक्स की चराई, नायब वजीर आला का खिताब। स्लम बस्तियों में बरवक्त सफाई को यकीनी बनाएं, मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाएं, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी। मेयर का मुख्तलिफ स्लम इलाकों का दौरा। मेरछेल केसरा आउटर रिंग रोड पर खौफनाक सड़क हादसा। नामालूम गाड़ी ने सड़क पर पौधे लगाने वाले 3 मजदूरों को रोन डाला। जू रोड पर RTC बस की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक। और बारिश की वजह से हुसैनी आलम में 114 साला मकान का जुज़वी हिस्सा मुनहद्दम, कोई जानी नुकसान नहीं, पूरे मकान को मुनहद्दम कर दिया गया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।